ہے کہ جہاد ہے, نکلنا ہے, ضروری ہے. یہ ریاست کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے وہ جو کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں بشرا بی بی کے جو جہاد والی بات پہ تو میں آتی ہوں کہ ظاہر ایک خاتون ہے, وہ آ کے اسلامک ٹچ بھی دے رہی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ جہاد جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ریاست کی مرضی سے ہوتا ہے, ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہوتا. یہ اسلامی نظریہ بھی کہ اگر آپ نے کسی ملک کے خلاف آپ کے ملک نے جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ریاست کی جو ہے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ احتجاج کر سکتے ہیں لیکن ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہوتے ہیں اگر وہ بھی آپ ایک اسلامی ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ تو آپ میں سے کر گئے پرویز بھائی کے جو امریکہ نے سازش کی تھی اور جو امریکہ نے ان کی حکومت نکالی تھی وہ اب ملبہ سعودی عرب پہ ڈال دیا گیا ہے. اب وہ ٹرمپ آ گیا تو ٹرمپ ساڈا پراو ہے, تو اب وہ محمد بن سلمان جو ہے وہ ہمارا بھائی نہیں رہا ہے. تو بشرا بی بی کی جو آج کی ٹاک ہے اس کے اندر سے جو چیز نکلی ہے وہ یہ کہ جی جب عمران خان پہلی دفعہ ننگے پاؤں مدینہ گئے تو واپس آئے تو جنرل باجوہ کو کال آئی اور اس کو کہا گیا کہ یہ آپ کس کو لے کے آگے, ہم اپنے ملک میں شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ شریعت کے ٹھیکیدار کو لے کے آگے. تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میرے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی گئی, میری کردار کشی ہوئی اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا. حالانکہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ تو 2018 سے پہلے سے ان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ہم دیکھ رہے تھے نکالنے کا جو امریکہ سے شروع ہوا تھا پھر محسن نقوی تک وہ چیزیں پہنچ گئی تھی, وہ محمد بن سلمان کی طرف چلی گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے کہ بھئی آپ اس ملک کے خلاف ایک اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہیں کہ جی وہ ہے انہوں نے یہ کر دیا. اچھا دوسری بات ایک اور آپ نے ان کے بیان میں نوٹس کی ہوگی کہ انہوں نے آج باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کے لیے این آر او مانگ لیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اچھا انہوں نے آج باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کے لیے این آر او مانگ لیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں, ٹی وی دیکھیں, زندگی کو انجوائے کریں, 72 سال کے وہ ہو چکے, کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی لائف کو انجوائے کریں. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ آپ کے لیے باہر بیٹھا ہوا ہے, آپ سب نکلو, لوگوں کے بچوں کو اکسا رہے ہیں, اپنے بچے آپ لوگوں کے پتہ نہیں کہاں پہ ہیں, اور دوسری طرف آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکل کے صرف ٹی وی دیکھیں. تو خان صاحب ٹی وی دیکھنے کے لیے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. مطلب جو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ باہر نکل کر کوئی تحریک چلائیں گے, باہر نکل کر اسلامی نظام مطلب وہ ان کا باہر نکلنا صرف مقصد یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ جہاں پر بڑے بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں صبح شام ان کو نظر آتے ہیں وہ نہ دیکھیں بلکہ کچھ اور دیکھیں. چلیں جی آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ صرف ان کا مقصد سنگل تو ٹی وی دیکھنا ہے. لیکن ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دے سکتی. اسلام آباد کے اور پشاور کے بھی تاجر برادری جو ہے وہ بھی اپنی درخواستیں لے کے جا رہے ہیں. تو کیا یہ لوگوں کا اس طرح باہر آنا اور عدالت کا روکنا پاکستان تحریک انصاف مان لے گی؟ ماننا پڑے گا. دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے نا, ان میں سے کوئی بھی احتجاج میں نہیں جانا چاہتا ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے, لیکن ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. ادھر پنڈی کے اندر سے کچھ ایسے ٹکٹ ہولڈر ہیں جن کو ایم پی کا ٹکٹ ملا اور بقول ان کے ہم جیتے تھے اور ہمیں فارم 47 سے ہروایا گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت بشرا بی بی ہمارے ساتھ پشاور میں بیٹھی خطاب کر رہی تھی ہمیں بڑا انسلٹنگ فیل ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے اوپر آرڈر کر رہی تھی. مطلب ایک ہوتا ہے نا مشاورت کرے مشورہ کرے, وہ آرڈر دیتی کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم لوگوں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے بات کرنی چاہیے تو ہمیں سنب کر دیا گیا. تو جو لیڈرشپ ہے, ایک تو بشرا بی بی کے بارے میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ وہ ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی وہ ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں اور وہ پارٹی کو ختم کرنے آئی ہیں. آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ وہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں نے 5,000 بندہ تم نے لانا ہے, 10,000 بندہ تم نے لانا ہے, اور اس کے بعد تم نے گرفتاری بھی نہیں دینی. دیکھیں بھلے وقتوں میں 2014 میں جب سارا سسٹم ان کے ساتھ تھا, یہ تب تو دھرنے کے لیے لوگ لا نہیں سکے تھے. سب کو پتا ہے کہاں کہاں سے لوگ رات کو لا کے ان کے دھرنے میں پورے کیے جاتے تھے کہ ناچ گانا ہو جائے اور لوگوں کو لگے کہ بیٹھے ہوئے. اور اب تو اینکر خود بات کرتے ہیں کہ ہمیں انسٹرکشن آتی تھی کہ آپ نے صرف وہ کنٹینر کو دکھانا ہے جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے, آپ نے ان کی بات نہیں کرنی ہے. تو کہ وہاں پہ لوگ ہی نہیں نیچے بیٹھے ہوئے, تو اس وقت تو یہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے. اور جس وقت خان صاحب نے مارچ شروع کیا تھا, وہ مارچ جس کے اندر ان کو گولی بھی لگی تھی, وہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری انہوں نے رکوانی تھی. جس وقت وہ لبرٹی چوک سے اس کو لے کے نکلے تھے 2,000 بندہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. خان صاحب کو گولی لگی تھی تو ارد گرد کا ایریا 5 منٹ میں صاف ہو گیا تھا. اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہو نا تو ان کو ہٹتے ہوئے ٹائم لگتا ہے.
तो उस वक़्त तो आप लोगों को ला नहीं सके। अब जब सिस्टम भी आपके साथ नहीं है, आपके लीडरान गायब हैं, इनका जो पार्लिमानी ग्रुप है लाहौर का, जिस दिन से बुशरा बीबी ने ये ऑर्डर दिया वो खामोश हो गया है, वो सो गया है, उसके अंदर कोई हलचल ही नहीं है कि लोग कहाँ से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोग लाएँ और फिर वो गिरफ्तार भी ना हो। वो क्या सुलेमानी टोपियाँ पहन लेंगे खुद भी और लोगों को भी कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, वो बंदे पहुँचा देंगे इस्लामाबाद के अंदर। तो ये बुशरा बीबी ने कहा जो बंदा गिरफ्तार होगा पार्टी से निकल जाएगा, जो बंदा नहीं लेकर पार्टी से निकल जाएगा, पीछे पार्टी में सिर्फ बुशरा बीबी बच जाएंगे इस हिसाब से। तो जो इमरान खान की आज भी ज़राए के ज़रिए खबरें चल रही थी कि उन्होंने गंडापुर को कहा कि अगर तुम इस दफ़ा नाकाम रहे तो मैंने पार्टी बुशरा बीबी को दे देनी है। तो लगता है यही कि बुशरा बीबी प्लान बना चुकी हुई है, माइनस इमरान खान, वो कोई पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाह रही हैं। वो ऐसे नहीं, अलीमा खान तड़प रही हैं और वो भी बार-बार आके बयान दे रही हैं और आज कौम से खिताब भी करना पड़ गया बुशरा बीबी को और उस खिताब के अंदर जो अब उन्होंने ब्लंडर्स मारे हैं, ये आने वाले दिनों में पीटीआई को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा कि यही बात शेर अफजल मरवत ने कही थी तो इमरान खान ने उसको पार्टी से निकाल दिया था। तो ये इतना आसान नहीं कि आप अमेरिका से चलते-चलते अब आप मोहम्मद बिन सलमान से जाके दुश्मनी ले लें, तो ये आसान काम नहीं। और सऊदीज़ जो होते हैं ना वो अपनी दुश्मनियाँ भूलते नहीं हैं, ये याद नहीं रखेंगे इमरान खान साहब की जो वाइफ आज बात करके चली गई है। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से फेस सेविंग दे दी है इनको। एक तो इनके लोग तैयार भी नहीं है, इनका कोई तैयारी नज़र भी नहीं आ रही है और उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो नया कानून पास हुआ उसके तहत इन्होंने 7 दिन पहले इजाज़त लेनी है। अगर रियासत या हुकूमत इजाज़त इंतज़ामिया नहीं देगी, ये नहीं कर सकते। तो अब तो 7 दिन तो वैसे ही इनके पास नहीं है, कल परसों का दिन उन्होंने दिया हुआ है। तो एक तो इजाज़त इनको नहीं मिलेगी, इजाज़त नहीं मिलेगी तो उनको एहतजाज नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं करेंगे तो उन्होंने इंतज़ामिया को कहा अमन-ओ-अमान कायम रखने के लिए आप कुछ भी करें, तो ज़ाहिर है फिर गिरफ्तारियाँ होंगी। तो जब गिरफ्तारियाँ होंगी तो पीछे इनके लोग कहाँ से निकलेंगे? अभी तो पिंडी में जो 8 पठानों के ग्रोह है ना, वो जो बिरादरी है, वो हर वक़्त निकल के आती थी, जो जिनमें वो अफ़गानी भी पकड़े जा रहे होते थे सब कुछ, उनमें से 2 बिरादरियाँ भी इस दफ़ा नाराज़ हैं। तो पिंडी से जो कुमक मिलती थी ना अफ़गानियों की, पठानों की, इस दफ़ा वो भी कम है। फिर आज ये भी देखें कि चीफ सेक्रेटरी को जब वज़ारत दाखिला ने कहा कि आपने सरकारी मुलाज़मीन को कहना कि इस दफ़ा वो शामिल नहीं होंगे। तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी सरकारी मुलाज़मीन को लिख दिया आप गैर जानिबदार रहेंगे, आपने किसी एहतजाज में शामिल नहीं होना है। तो इनके आगे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इतने बड़े-बड़े जो दावे कर दिए गए हैं, जो इतने बड़े क्लेम कर दिए बुशरा बीबी ने, अब उनको समझ आएगी 24 के बाद वो उनको पूरा कैसे करेंगे जब वो पार्टी से लोगों को निकालेंगे। और ये भी देखें कि जो इस्लामाबाद का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ना मखसूस नशिस्तों का, उसके तहत से 36 लोगों को पीटीआई का करार दिया गया, बाकी तो अभी तक वैसे ही आज़ाद हैं। वो आज़ाद अगर उनको निकालेगी, वो किसी भी पार्टी को जॉइन कर लेंगे, इनकी पार्टी में बचेगा क्या फिर? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने भी ये कहा कि बुशरा बीबी जो है, उनके कहने के बाद इमरान खान के लिए सऊदी अरब में मसाइल बढ़ेंगे क्योंकि सऊदी अरब अपनी दुश्मनी नहीं भूलता। तो फिर जब ये बुशरा बीबी जब रहा हो रही थी, तो कहा जा रहा था कि ये किसी डील के ज़रिए बाहर आ रही है और इनको बाहर लाने वाले इनके हवाले पार्टी करेंगे और ये पार्टी पे कब्ज़ा करें। तो फिर इसका मतलब है कि वो लोग जो तब ये बात किया करते थे कि बुशरा बीबी पार्टी पर कब्ज़ा करने वाली, वो बात तो फिर आज ठीक साबित होगी ना जी उन लोगों की। अच्छा देखिए, बुशरा बीबी तो पार्टी पे कब्ज़ा करती हुई नज़र आ रही हैं ना, इस वक़्त वो हुँ। लीडर बनी हुई हैं, वो किसी को बात नहीं करने दे रही। 30-30, 40-40 साल पुराने तजर्बाकार जो सियासतदान है, वो सर झुका के उसके सामने बैठे हुए, कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई उससे कुछ पूछ नहीं सकता। लेकिन वो पार्टी पे कब्ज़ा भी करेंगे, साथ डील के तहत पार्टी को तबाह भी करेंगे। देखिए, जो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, एक तो पहले उस ऑर्डर के तहत जब लोग नहीं आपके निकलेंगे 5-5, 10-10 हज़ार एक एमएनए, एमपीए नहीं लाएगा, तो आपने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो वो भी पार्टी से फारिग हो गया। अब जो सऊदी अरब के साथ आपने अपने मामलात खराब कर दिए तो कल को हुकूमत में किस तरह से आके आपने हुकूमत चलानी है। और फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक तरह से बता दिया कि जी इमरान खान तो बाहर निकल के सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं। तो बुशरा बीबी तो खुद अभी कंफ्यूज है कि वो कहना क्या चाह रही हैं। एक तरफ वो लोगों को कह रही है कि आप निकलें, बच्चों को लेके निकलें, किसान निकले, डॉक्टर निकले, मजदूर निकले, रिक्शे वाला निकले, ये इमरान खान आपके लिए है। दूसरी तरफ वो कह रही है कि इमरान खान ने निकल के सिर्फ टीवी देखना है। तो अगर इमरान खान ने सिर्फ टीवी देखना है तो वो इमरान को जो है टीवी प्रोवाइड कर दिया जाए उसके अंदर जेल के अंदर, और या फिर इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करके उनको टीवी दे दिया जाए कि चले जी अगर आपने निकल के टीवी देखना है तो फिर ये लें आप बैठ के टीवी देख लें। फिर अवाम को किस लिए निकाल रहे हैं? आप लोगों के कारोबार को तबाह कर रहे हैं। देखिए हम इस्लामाबाद में रहते हैं, कंटेनर लग जाते हैं
हमें जब इस्लामाबाद की साइड पे जाना होता है फैजाबाद पे, पेट्रोल इतना महंगा है, घूम घूम के 1.5 घंटे के बाद हम अपने टीवी स्टेशन पहुंच रहे होते हैं प्रोग्राम करने के लिए, लोग ऑफिस में पहुंच रहे होते हैं, बच्चों के एग्जाम होते हैं, उनके एग्जाम सारे खराब हो रहे होते हैं, लोग अपने काम जो दिहाड़ीदार है वो तबाह हो रहा है, तो तबका जो दुकानदार है उसकी दुकानदारी मारी जा रही होती है। वो पेशावर हाई कोर्ट में भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए। तो आप उनकी कारोबार तबाह करें, मेशत को तबाह करें, एहतजाज करें, लोगों की जिंदगियां खतरे में डालने। पिछली दफा एक पुलिस वाला जो था वो भी मारा गया था। अगर सिर्फ इमरान खान के टीवी देखने के लिए आपने ये सारा कुछ करना है, तो मेरी मोहसिन नकवी साहब से अपील है कि प्लीज आप बनी गाला को सब जेल करार देके खान साहब को टीवी देखने दें, ताकि एक दफा इस झंझट से, इस अजाब से लोगों की जान तो छूटे। ये भी तो हो सकता है कि खान साहब के पास टीवी तो मौजूद है, लेकिन वहां पीटीवी लगाकर रिमोट खान साहब के पास नहीं है। तो अगर शायद उनको रिमोट दे दे तो मसला जेल में ही हल हो जाए। मोहसिन नकवी साहब, आपके नाम लिया है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि किसी किस्म के किसी से कोई मुज़ाकरात ही नहीं हो ही नहीं रहे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कैसे दावा कर रही कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं? अच्छा देखिए, अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। उसमें आपको याद हो गार्डियन की स्टोरी कुछ दिन पहले आई थी और गार्डियन ने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और वो अपने लोगों को कह भी रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें। लेकिन जो मिलिट्री की सीनियर क़यादत है वो कोई नहीं करना चाह रही मुज़ाकरात, वो कह रही है कि आप जाएँ जाके अपने केसेस को भुगतें। अब इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि मैंने मुज़ाकरात सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं, मैंने हुकूमत के साथ नहीं करनी। हुकूमत तो बार-बार उनको ऑफ़र कर रही है। तो लगता ये है कि मुज़ाकरात ही अपनी तरफ से अपने लोगों को हौसला देने के लिए शायद ये कोई ना कोई स्टोरी बना देते हैं मुज़ाकरात की, कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, या अंदरूनी खाना हो सकता है कि चल भी रहे हों कोई मुज़ाकरात। क्योंकि देखिए एक तो बात ये की जा रही है कि इंग्लैंड के जो अभी आए भी हुए थे सेक्रेटरी खारजा, जी। तो कहा जी जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल ना हो। वो चाह रहे हैं कि आप इसको जेल में रखें, ठीक है? जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि आप इमरान खान को जेल से रिहा कर दें, लेकिन हमारे मुल्क ना भेजें, आप इसको सऊदी अरब और कतर भेज दें। अब सऊदी अरब, कतर इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब के साथ आज जो बुशरा बीबी ने कर दिया, उसके बाद तो वो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो असल में इश्यू ये चल रहे हैं कि जो ये बार-बार प्रेशर पड़वा रहे हैं, जहाँ पे ये जब जाके एंगेज कर रहे हैं कांग्रेसमैन को। आपको पता है कि अमेरिका में आप पैसे दें और लॉबिंग करवा लें, तो पैसे वहाँ पे लगा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं और उसके ज़रिए वो प्रेशर तो डलवाया जा रहा है कि इनको निकाला जाए, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि निकाल के हमारे मुल्क में भेज दें। वो हर कोई एक कह रहा है कि मिलिट्री ट्रायल ना करे, कोई कह रहा है इनको सऊदी अरब, कतर भेज दें। तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं, जिसकी वजह से शायद कोई ना कोई कहीं न कहीं मुज़ाकरात चल रहे हों। मेरा नहीं ख्याल कि मोहसिन नकवी साहब ओपनली आके ये बात करेंगे, लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ चल रहा है, जिसमें अगर खान साहब को कोई फेस सेविंग अगर दी भी गई, तो वो ये नहीं दी जाएगी कि उनको किसी यूरोपीय मुल्क में भेज दिया जाएगा कि आप जाएँ, जाके वहाँ पे सियासत भी करें। फिर कुछ ऐसा होगा कि उनकी सियासत खत्म की जाएगी। दूसरा ये भी मसला है कि खान साहब को के अब जो जनरल फैज़ हमीद का कहा जा रहा है कि ट्रायल कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसका फैसला आने वाला है। तो उस ट्रायल में अगर उन्होंने अपने बंदे को ट्रायल कर रहे हैं, तो वो उसको क्यों नहीं ट्रायल करेंगे कि जो सारे इस फसाद की जड़ है। फिर एक हमारे वो हैं हैदर नकवी साहब, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि जी मुराद सईद की जो स्टोरियाँ सामने आएँगी और अरशद शरीफ का जो कत्ल जो हुआ है, उसके जो असल सबूत सामने आएँगे, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि हुआ क्या है। तो मामलात जो हैं वो खान साहब के लिए बड़े खराब होते जा रहे हैं। वो इस वजह से डेस्परेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। अगर आज देखा जाए तो बुशरा बीबी ने एक तरह से जो टीवी देखने वाली बात की है, वो उन्होंने शायद इदारों को ये कहने की कोशिश की है कि खान साहब की बख्शिश कर दें। वो बाहर निकल के कुछ नहीं कहेंगे, वो अल्लाह अल्लाह करेंगे और बैठ के टीवी देखेंगे बस। हाय! ये टीवी वाली बात वैसे आपको बड़ी बुरी लगी, हालाँकि वो टीवी पर आप भी तो आते हैं, आपके भी प्रोग्राम सुनेंगे, आपके भी तबसरे वो सुनेंगे। अच्छा, अदालत के रवैये पर क्या फरमाएँगे? आपको मेरे याद है? तबसरे देखें, मेरे तबसरे तो वैसे वो सुन रहे होंगे क्योंकि मैं तो हाँ, पीटीवी पे पीटीवी। प्रोग्राम करती हूँ। पीटीवी वाले वो सुन रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ। पीटीवी वाले सुन रहे होंगे, अम्मार भाई के नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन आपके उन तक जा रहे होंगे। हाँ हुई जी, न्यूज़ के शायद ना जा रहे हों, लेकिन पीटीवी के उन तक जा रहे हैं। पीटीवी जा रहे हैं, अदालत हाँ जी। अदालत के इस रवैये पर क्या कहती हैं? आपको शायद याद होगा, इससे पहले वो जो बंदयाल साहब के दौर में तो बाकायदा तौर पर इमरान खान को कहा जाता था तशरीफ लाएँ जी, वहाँ तक आ जाएँ, फिर उससे वो आगे चले जाते थे। तो फिर वो कहते थे कि शायद खान साहब तक पैगाम ना पहुँचे, लेकिन मौजूदा अदालत ने तो कहा है कि जी आप धरना, आप बिल्कुल नहीं प्रोटेस्ट कर सकते लोगों की। तो ये जो अदालत में तब्दीली लाने की कोशिश की थी, आपको लगता है कुछ तब्दीली आई है अदालतों के रवैये में?
अच्छा देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से खान साहब को रिलीफ पहले मिलता रहा हुआ है, लेकिन वो केसेस में मिलता रहा हुआ है। एहतजाज में बंदियाल साहब ने उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया था। आपको याद होगा कि जब 25 मई को 2022 को उन्होंने आके यलगार करनी थी इस्लामाबाद के ऊपर, उनको कहा गया था कि नहीं जी 14-15 के सामने एक जगह मखसूस कर दी जाएगी, वहाँ पे जाएँ और जाके कर लें। लेकिन फिर भी खान साहब एंटर हुए थे इस्लामाबाद के अंदर और फिर कहा गया था कि हो सकता है कि उनको मैसेज ना मिला हो। बात ये है कि जो बंदियाल कोर्ट है वो तो पहले से ही जा चुकी हुई थी। बंदियाल कोर्ट का जो मामला था वो तो तकरीबन उनके साथ खत्म हो गया था। अब उसमें रह गए हुए थे मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जिनकी तरफ से उनको रिलीफ मिल रहा था। अब मसला ये है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो अब चेंजेस आई हैं, इस्लाहात हुई हैं कोर्ट में, अब उनके जो दांत है वो निकाल दिए गए हैं। ठीक है? अब वो एक बेदांतों वाले जान वो कह सकते हैं कि जज बन के रह गए हैं। वो उस कमेटी के अंदर भी नहीं है जिन्होंने केसेस लगाने हैं। जस्टिस जो याया अफरीदी हैं, वो कानून और आइन पे चलने वाले जज हैं, जिस तरह के जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। तो वो तो आइन और कानून पे चढ़ेंगे और कोई भी उनको यलगार की वो नहीं दे सकता इजाजत। कानून हाथ में लेने की इजाजत कोई नहीं दे सकता, शहरियों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत कोई नहीं दे सकता, लोगों के कारोबार तबाह करने की इजाजत कोई नहीं दे सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी उनको एक दो दफा जब कहा था तो एहतजाज का यही कहा था कि आप जाके हुकूमत से इजाजत लें, आप जाके, और पिछली दफा भी उनको इजाजत मिलती थी किसी जगह के लिए, ठीक है? लेकिन इस दफा तो बकायदा उनको रोक दिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब उनको बकायदा रोक दिया गया और इंतजामिया को फ्री हैंड दे दिया गया है। मेरा अपना ख्याल है कि अब अदलिया को भी समझ आनी शुरू हो गई हुई है कि आप अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप तारीख की किस सिमत पे चले। देखिए, पॉपुलिज्म के लिए तो आप कर लें कि ठीक है, पॉपुलिज्म पे चलना चाह रहा है, शुरू कर देंगे। पीटीआई के वो जो कुछ लोंडे लपारे जो होते हैं वो आपको यूके में कुछ देर तंग कर लेते हैं, लेकिन जब से वो सख्त किस्म का रवैया अपनाया गया तो अब काजी फाइजी साहब बड़ी आराम सुकून से घूम रहे हैं अपनी बीवी के साथ लंदन में, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा। तो वो तो मियाँ साहब की शराफत थी कि उनके घर के बाहर वो जाके बोल रहे होते थे तो कभी उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं की या सख्त रवैया नहीं अपनाया, वरना वो कभी भी वहां पे वो लोग नजर ना आते उस तरह से। तो जब कानून अपना रास्ता लेता है तो फिर ये जो शरपसंद होते हैं ना, ये खुद बहुत वहां से फिर भागना शुरू करते हैं। तो काजी फाइजिसा के मामले में आपने देख लिया कि फिर माफिया मांग रहे थे आके वो एक्स के ऊपर कि जी हम नहीं थे उसमें, हम इसमें मुलविस नहीं थे। तो जजेस को भी समझ आ गया कि पॉपुलिज्म जो होता है ना उसका अरसा थोड़ा सा होता है, और जो आप कानून और आइन पे चलते हैं उसका रास्ता लंबा होता है, उससे ज्यादा इज्जत होती है। अब काजी फाइज ईसा को लंदन में बुलाया गया, बेंचर बनाया गया, सेकंड वो जज है जिसको वहां पे बुला के इतनी इज्जत दी गई है। पाकिस्तान में एक सीरियस तबका, एजुकेटेड तबका, मेच्योर तबका काजी फाइज ईसा की इज्जत करता है। अगर हम कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर चले जाएं कि अगर उन्होंने अपने यूट्यूब चलाने के उनके खिलाफ एक महाज बनाई रखा, तो अब देख ले काजी के जाने के बाद उनके व्यूज भी गिरने शुरू हो चुके हैं। तो ये पॉपुलिज्म जो होता है ना, इसकी मियाद बहुत थोड़ी होती है। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते लेकिन हमेशा के लिए नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है जजेस को भी समझ आना शुरू हो गया है कि आइन कानून पे चलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब आपको कहा जजेस जज अतर मीनुल्लाह वो बैठे भी थे एक केस के अंदर, ये जो बलूचिस्तान का सुना जा रहा था इलेक्शन के सीट्स का, तो वो उसमें से निकल गए थे और दूसरे जज उसमें से आ गए थे। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता-आहिस्ता सबको अब समझ आनी शुरू होगी है कि जज का काम सियासत करना नहीं है। जज का काम सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अब आप देख लें कि एक आईनी बेंच बन चुका हुआ है, वो केसेस सुन रहा है, दूसरी तरफ पे एक दूसरे जज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह कभी ना कभी कोई शुरली छोड़ देते हैं, ज़ाहिर है कि उनको चीफ जस्टिस ने बनाया गया, उनको इस चीज़ का दुःख है, लेकिन ज़्यादातर मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक 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 हवा ये भी थी, एक आवाज़ ये भी आ रही थी कि शायद नजम सेठी साहब ने भी कहा था कि इमरान खान साहब को शायद सऊदी अरब भेज दिया जाए। लेकिन बुशरा बीबी ने जिस तरह आज सऊदी अरब का ज़िक्र किया, मेरा ख़्याल है वो भी बुशरा बीबी ने कम से कम काफ़ी ठेस पहुँचाई है उस न्यूज़ को। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह मियां नवाज साहब को भेजा गया था, इस तरह खान साहब को किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया जाए और उसके साथ कुछ शराइत हों, जैसे खामोश रहना या कुछ अरसे के लिए? क्या मुमकिन है? हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसा? परवेज़ भाई, बात ये है कोई मुल्क उसको लेना ही नहीं चाह रहा। कौन-सा मुल्क है जिसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं? आपको भी पता है मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसके किस किस्म के ताल्लुकात हैं। कतर हमें इतना सस्ती एलएनजी दे रहा था और इन्होंने उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, अगलों ने कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया था। चाइना तो वैसे इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, वो वहाँ पे एक उसका दौरा नहीं हुआ था। सिर्फ़ एक दफ़ा जब वो गया था तो उन्होंने कहा था मैच देखो और यहाँ से वापस जाओ। ठीक है? उसके बाद तुर्की जब गए थे तो वो भी चले, तुर्की जो है उन्होंने कोई इसको दिखा दी, लेकिन तुर्की तो हमें सियासी कैदियों को लेता भी नहीं है। तो
कौन सा मुल्क उसको लेना चाहेगा? और अगर कोई मुल्क सोचेगा भी तो बुशा बीबी तो लगता है कोई खान साहब के सारे ही रास्ते बंद करना चाह रही है। जो आज उन्होंने एक तरह से ये कौम से खिताब किया ना, वो उन्होंने खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा है कि जो अगर सऊदी अरब को कहा भी जाता, अगर वो कहता चलो हम ले भी लेते, आज के बाद सऊदी अरब कहाँ से लेगा, जिसके ऊपर इल्जाम उन्होंने लगा दे कि अमेरिका ने नहीं, अब सऊदी अरब ने उसको हटाया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हुकूमत कोई ऐसी चीज सोच भी रही होगी, अमेरिका के प्रेशर में अगर सोचेगी भी, तो कौन सा मुल्क लेगा? देखें, जब जुल्फकार अली भुट्टो थे तो लीबिया ने भी कहा, शाम ने भी कहा, वो उस वक्त बड़ी पावरफुल मुल्क होते थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया था, लेकिन चूंकि अमेरिका नहीं था उनके साथ, तो नहीं वो निकल सके थे। नवाशी साहब की टाइम के ऊपर भी सऊदी अरब लेने के लिए तैयार हो गया था, लबनान बीच में उनके आया था। तो जिन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, जिन मुल्कों को पता होता है कि ये लोग कौन काम करने वाले हैं, वो ही उनके पीछे आते हैं और वो फिर उनको लेके भी जाते हैं। इनको कोई लेना ही नहीं चाह रहा। कोई लेना चाह रहा होता तो 1 साल से ऊपर हो चुका है। अगर सऊदी अरब कहता हमारी हुकूमत को, तो क्या आपको लगता है कि हमारी हुकूमत इनकार करती? हमारी हुकूमत सऊदी अरब को कभी इनकार ना करती। लेकिन सऊदी अरब लेना ही नहीं चाह रहा है ना कतर लेना चाह रहा है। कतर तो बिल्कुल भी मैं हमें शक्ल नहीं देखना चाह रहा होगा। तो जाएंगे कहाँ पे? फिर उनके पास बचता तो अडयाला ही है। अफगानिस्तान भी तो उनके अच्छे तलकात रहे हैं, उन्होंने बड़ी वहां पे हेल्प आउट की उनकी, और उनके बारे में बड़ा नरम रवैया रखते हैं। हो सकता है तालिबान ले ले। पूछे जरा तालिबान के पास वो जाना चाहते हैं? क्योंकि खान साहब की जिस किस्म की एक्टिविटीज हैं, वो वहां पे तो वैसे ही फतवे लग जाने हैं। फतवे भी लग जाने, और खान साहब को वहां पे कोई ऐसा सामान भी नहीं मिलना, और हो सकता है ओरिजिनल भी मिल जाए। आखिर में जरा ये हम्म। फरमा दें, ये जो अभी आपने जिक्र भी किया, ये जो दूसरे मुल्कों में मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, जिनकी सारी जिंदगियां मिल गई हैं, मैं जाती हैसियत में समझता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान के सफीर हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का चेहरा है, जैसा भी बन जाएंगे दुनिया को वैसा ही पाकिस्तान नजर आएगा। और इसकी मिसालें मौजूद हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ यहाँ की थी, तो उनको कहा गया कि, तो पाकिस्तान में शादी थी एक, वो लेके जाना चाहते थे, आज से कोई 15-18 साल पहले की बात है, तो वो उसकी पूरी फैमिली इसकी मुखालफत करती थी, और वो नहीं जाना चाहती थी, बट हम लोगों ने कन्विंस किया, तो वो शी वॉज रेडी ओनली फॉर द 5 days। बट वो जब वहां पर गई, उन्होंने स्विमिंग पूल देखा, उन्होंने 10 नौकर देखे, उन्होंने बच्चे के टेक केयर करने के लिए मुलाजम देखे, गाड़ी ड्राइवर ये देखा, और फिर वो 4 हफ्ते रह के आई। तो मतलब चेहरा है ना हम पाकिस्तान का यहाँ पे, लेकिन ये जो चेहरा दिखाया जाता है, ये जो आप देखते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये इनको सोचने समझने की सलीहियत नहीं है, या इमरान खान ने इनके दिमाग इतने मौफ कर दिए हैं? क्या ऐसी वजह है कि सच जानने के बावजूद या सच देखना नहीं चाहते, और जिस तरह की ये हरकतें कहते हैं, खासतौर पे काजी साहब वाली जो मिसाल है? अच्छा परवेज़ भाई, सब लोग सब जगहों पे बुरे नहीं होते हैं। चूँकि हमारा बाहर के मुल्कों में आना-जाना है, तो हमें बड़े अच्छे लोग भी मिले हैं। लेकिन मसला आपकी बात सही है कि कुछ लोग वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। तो उनके नज़दीक जो बंदा इंग्लिश अच्छी बोल रहा होता है ना, वो उनको बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ के भी ओवरसीज़ बड़े दीवाने थे। जी। तो आपको इन उन लोगों का मसला यही हो जाता है, क्योंकि वो खुद वहां पे रह रहे होते हैं, गोरों के सामने सासे कमतरी का शिकार होते हैं, तो वो समझते हैं कि जब हम कोई हैंडसम बंदा आ जाएगा, अच्छी इंग्लिश बोलने वाला बंदा आ जाएगा, तो शायद हमारी यहाँ पे इज्जत ज्यादा हो जाएगी। कुछ जो बर्तानिया के अंदर ओवरसीज हैं, आपको भी पता है बर्तानिया में कैसे कैसे जाके असाइलम लिए जाते हैं, किस तरह से वहां पे वजीफे लिए जाते हैं। पाकिस्तानियों की एक मेजोरिटी क्लास वहां पे पढ़ने लिखने से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, और जिस किस्म के वो काम कर रहे होते तो उनको एक शोहरत चाहिए होती है, और वो शोहरत उनको लग रहा था कि हम इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करेंगे तो जो एक सटन क्लास या ओवरसीज का एक जो ग्रुप जो है वो जो इमरान के पीछे चल रहा है, तो उनके नजदीक हम हीरो बन जाएंगे। हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, आप दूसरे मुल्कों के सामने पाकिस्तान का इमेज बुरा बना रहे हैं, आप पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के सामने अपना इमेज बुरा बना रहे हैं। क्योंकि अगर दुनिया ये देखेगी कि जब ब्रिटेन में पढ़ने वाले या ब्रिटेन में रहने वाले लोग इस तरह के हैं, अमेरिका में रहने वाले, कनाडा में लोग इस तरह के रहने वाले, तो हम पाकिस्तानी तो उनसे बहुत अच्छे हैं। हम उनकी जो यूनिवर्सिटीज को या उनको एडमायर कर रहे होते हैं कि वहां पे जाएंगे, पढ़ेंगे, उनकी क्लास चेंज हो जाएगी, उनके दिमाग चेंज हो जाएंगे। इनको देख के तो लगता है जैसे जैसे वो दिमाग माउफ हो जाएंगे। और कुछ हमारे जो मतलब ये पाकिस्तानी, दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया के जरिए जो एक झूठ फैला दिया गया हुआ ना, वो जो हमारे बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी है ना, वो उस झूठ की तहकीक करना ही नहीं चाह रहे हैं, वो रिसर्च ही नहीं करना चाह रहे कि हो क्या रहा है, वहां पे चल क्या रहा है। उनके ज़हनों में एक नफरत जो बिठा देगी, और वो नफरत इस वजह से कि वो खुद दूसरे मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी हैं, तो वो जो एहसास कमतरी है उनके अंदर से नहीं
نکل رہا ہے. تو جس دن وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں رہیں گے اور وہ کریٹیکل تھنکنگ کرنا شروع کریں گے تو ان کو خود سمجھ آنے شروع ہو جائے گی کہ ان کو کس طرح سے بیوقوف بنایا گیا. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ ہماری یہاں پہ جو لبرل خواتین ہیں جو بڑی فیمنزم کا پرچار کرتی ہیں اور ہمارے بہت سے جو لبرل لوگ ہیں جن کو لگتا ہے وہ ابایا کیوں لیا جا رہا ہے، عورت کو ابایا لینے سے منع کیوں کیا جائے، بشرا بی ان کی رول ماڈل بن رہی ہے. وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے یو کے اندر آپ ہر طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، کینیڈا میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ ہر طرح کی آپ ڈانس پارٹیوں میں بھی جا رہے ہیں، ان کو ڈرنک کرتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے سب کچھ کریں. بندہ ان کو شریعت والا چاہیے ہوتا ہے، عمران خان جیسا کہ میں مدینہ کی ریاست لے کے آ رہا ہوں، یہ وہ منافقت ہے. آپ جمہوریت کے سارے مزے وہاں پہ لیتے ہیں، آپ آزادی اظہار رائے کے سارے مزے وہاں پہ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پاکستان کے لیے نا کوئی ڈنڈے والا بندہ ہونا چاہیے جو ڈنڈا لے کے آئے اور ان کو ٹھیک کرے. اس لیے ان کو مشرف بھی پسند آتا ہے، اس لیے ان کو ڈکٹیٹر مائنڈ عمران خان بھی پسند آ جاتا ہے. تو